to know that the Sambhal District Administration has now written to the ASI on the temple. Remember, the temple has reopened after a few days now. So we're getting these back-to-back updates coming in. The Sambhal District Administration has written to the ASI, the Archaeological Survey of India, for carbon dating of the Bhasma Shankar temple, including a well there, days after the reopening of the temple locked since 1978 following riots in the town. Worshippers have started visiting the temple and it is being guarded around the clock. District Magistrate Rajendra Pensia says the security guards have been permanently posted at the spot and the CCTV cameras have been installed and the encroachment is being removed. So this is what we see right now on Republic TV. Administration writes to ASI for carbon dating of the Bhasma Shankar temple. So this is a new update that we're getting for you right now on Republic TV. Viewers, we'll try to connect with reporters as well to understand what we can expect next in terms of development. But already we have seen the Aarti performed at the reopened temple in UP Sambhal. And a lot of police personnel have been deployed ever since this temple has reopened after decades. We're getting that reaction coming in. Let's go ahead and play out what the reaction is coming in from the district administration. हमारी 4 तरह की कार्रवाई चल रही है। एक शुरुआत में जो संभल में बताया गया है कि 19 कूप 36 पूर्वे 52 सराय और 68 तीर्थ हैं, उनको खोज करने के लिए एक पूरी टीम लगी हुई है काफी समय से। दूसरा जो अस्थायी अतिक्रमण है नाले पर और सड़क के ऊपर, वो हम हटा रहे हैं। जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करके नोटिस के माध्यम से हटाएंगे। तीसरी चीज जो बिजली चोरी का अभियान है वो भी लगातार जारी है और इसके साथ साथ अन्य किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी या जैसे कमर्शियल चीजें यदि रेजिडेंशियल एरिया में हो रही है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। All right, so as you clearly see, viewers, just days after the 46-year-old Shiv temple has reopened in Sambhal, we're coming to know that the big update coming in right now is that the Sambhal District Administration has returned to the ASI for carbon dating of the Bhasma Shankar temple, including a well there, days after the reopening of the temple locked since 1978 following riots in the town. We'll try to go across to my colleague in a short while from now, but remember, this is coming in as Aarti has already been performed in the temple. The temple was recently reopened. It's a very important temple because it has the statues of Lord Shiv and Hanuman. It's a very famous Lord Shiv and Hanuman temple in Sambhal. It was reopened after decades in Sambhal district. And the Sambhal administration has reopened the temple locked since 1978 following communal riots in the town. And the temple has been locked since 1978 after the communal riots that led to the displacement of the Hindu community. So this is a very important story. Now the district administration has asked for the carbon dating of this temple. I'm going to go to Jatin. Jatin, yes, go ahead and tell us what we can expect next, Jatin, because, you know, this is very important given the fact that this temple has been locked up for since 1978 and now it has reopened. So it's a possibility, Jatin, that the ASI carbon dating might begin soon. जी बिल्कुल, देखिए एएसआई की टीम अब किसी भी टाइम यहाँ पर पहुंचेगी। हालांकि डीएम के जरिए जो पत्र है वो लिख दिया गया है और उसके बाद 1-2 दिन संभवतः लगेंगे यहाँ पर आने में। और उसके बाद चाहे वो प्राचीन मंदिर की बात कर लीजिए, जो कुआं उसके पास से बरामद किया गया, उन दोनों ही जगह की जो कार्बन डेटिंग और सर्वे है वो किया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं कि सुबह का यहाँ पर समय है और आज पहला सोमवार भी है, तो उसको देखते हुए तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर सुबह से ही की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, मंदिर की सिक्योरिटी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो काम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, सीसीटीवी कैमरे आप देखेंगे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन आज एक तरफ नजर इस बात को लेकर भी रहेगी कि अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। ये जो घर आप देख रहे हैं मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ, कुछ देर में यहाँ से जो अतिक्रमण है उसको साफ तौर पर हटाया जाएगा। ये भी बोला जा रहा है कि जो इस मकान के मालिक है वो खुद जो अतिक्रमण
अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी काम किए जाएंगे वो नियमों के अनुरूप किए जाएंगे। और पहला सोमवार है तो आप देखेंगे कि भक्तों की लाइन यहाँ पर है और लोग जयकारे नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो शिवलिंग है उस पर जल जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। भक्तों में इस बात को लेकर खुशी है कि 46 साल बाद जो मंदिर है वो मंदिर यहाँ पर मिला है और उसी यही कारण है कि दूर से भी अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। पहला सोमवार है, जल चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि 40 साल तक जो मंदिर था उसके बारे में जानकारी नहीं थी, कैसे छुपा कर रखा गया। और यही रीजन है कि दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? गांव बवेना से आए हैं हम। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है। पता था यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर है? नहीं, पहले पता था लेकिन उसके बाद में ये बंद कर दिया गया। मैं सन 78 में इंटर में पढ़ता था तो यहाँ पे मारकाट चली थी काफी। हमारे गांव के भी 2 लोग मारे गए यहाँ पे और हम आए थे यहाँ पे तो बड़ी घूम घाम के हमारे पेपर भी हट गए थे। कहाँ से आए आप? बड़ाई वाली बस्ती से सब। आपको पता था यहाँ प्राचीन मंदिर है? जी नहीं, जब यहाँ पे सर्वे हुआ था तभी पता लगी थी हमें। तो आप क्या दर्शन करने आए हैं? जी। कहाँ से आप? कहाँ से आए? हम सब ग्राम बड़ाई वाली बस्ती लोधी सराय से आए हुए हैं, रेलवे स्टेशन के पास से। यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। यहाँ इन लोगों ने मंदिर ये दबा रखा था। यहाँ जब सब खुला, ये सीओ चौधरी जो है अनुज चौधरी, उनके तरफ मस्जिद से खुला, तब यहाँ सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, 200-200 किलोमीटर दूर से यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इस मंदिर पे। आप लोगों को पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? नहीं, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। बट ये कि ये तो एक तरफ सा मतलब ये है ना कि ये मुस्लिम एरिया है तो यहाँ को कोई अंदर को कोई क्या करेगा देखने की, किसी की हिम्मत भी नहीं हो। और ये पहले अगर पता होता तो इस बात की वो भी होती। अभी यहाँ एक शुरुआत हुई है तो इसीलिए हर जगह पे जहाँ जहाँ ये चीज है वो निकलता हुआ आ रहा है सामने। अब ये तमाम लोग हैं और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आएंगे, लोगों से हम बात करेंगे। ये देखिए जल लेकर जो लोग, आप जल लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए, कहाँ से लाए हैं जल? अच्छा, पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? हमें पहली बार मालूम पड़ा है। तो आप देखेंगे पूजा अर्चना की जो विधि हो, जल के जो कैन हो, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं के हाथ में आप देखेंगे तुलसी और जो तांबे के कलश होते हैं। जल चढ़ाने आई है जी, आज सोमवार है इसलिए पता था आपको यहाँ पे इससे पहले कभी आए मंदिर में? नहीं, पहली बार आए। आप भी पहली बार आए? तो देखेंगे तमाम महिलाएं हैं, हाथों में कैन लिए, लोटे में जल लिए यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आई हैं आप? डांग बंगले पे से। पास में ही है गाँव यहाँ से? हाँ, बराबर में ही है। अच्छा, पता था यहाँ पे मंदिर था? पता ना था, हाई पे रहे थे जब भी पता ना था। तो लोग पलायन करके भी यहाँ से गए और उसके बाद से कोई यहाँ पहुंचा नहीं। लेकिन उसके बाद की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। आज पहला सोमवार है। इस मंदिर के हिसाब से पहला सोमवार लोग इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि सन 78 में आखिरी बार लोगों ने पूजा की थी और उसके बाद से मंदिर बंद हो गया, दीवारें खड़े कर दी गई साफ तौर पर। और उसके बाद से ही अब जब कपाट खुले तो भक्तों में उत्साह है और लोग पूजा अर्चना करने, हाथ में जल लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि शिवलिंग पे जल अर्पित कर सके। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। कुएं की तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखा दूं। ये कुआं आप देख रहे हैं, इसको लेकर खुदाई जो है वो की जा रही है। तकरीबन 15 फीट के आसपास खुदाई की गई है। 15 फीट और खुदाई की जानी है। इसकी बाउंड्री में आप जो लाल ईंटें देख रहे हैं, इन्हीं ईंटों तक, जहां तक ये दीवार दिखेगी वहां तक जो एडमिनिस्ट्रेशन खुदाई करेगा। तो दूसरी तरफ सबूतों को ढूंढने की कवायद और प्राचीन मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ अब मंदिर में उमड़ती हुई नजर आ रही है। बैक टू स्टूडियो। Right, and thank you for joining us with all those details. Jatin, I will be coming back to you because we see a lot of developments coming in where the district administration has asked for a carbon dating from the ASI. So we'll keep an eye as that goes ahead and we get updates on that story.